So, welcome viewers, and the stage is set, and we are privileged today to have with us the makers and the performers of the civil service examinations to 2019, and uh, this is a special show on careers in civil services. I am feeling really proud to have with us some of the most promising future leaders of civil services who will be available in your cities and who have pledged to serve the country with their commitment, with their knowledge and the expertise which they carry. इस कोविड टाइम्स ने हमको ये दिखाया कि सिविल सर्विसेज के लोगों ने कहीं the commissioners, collectors, SDMs, IGs, and all the uh, people who are handling COVID in from across the country have contributed and supported the country, the citizens of this country in all possible ways. एक रैंडम सी सिचुएशन आई जिसके लिए कोई तैयार नहीं था और हमारे प्रशासन की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है हमारी सिविल सर्विसेज उसने बहुत इफेक्टिवली बहुत अच्छे से मैनेज करा इस सिचुएशन को चाहे वो बॉम्बे हो चाहे वो भोपाल हो वो दिल्ली हो everywhere the contribution these people have made a big salute to them and it is such a great opportunity to have two shining stars who are going to enter this civil services and a person who is behind making so many people their dreams possible for serving the country, Dr. Khan with us. So a warm welcome to all the panelists, our students, our youth, and I have got responses that many parents are also joining today's session. So we are all thrilled for this session, and I really thank Ruchi for making this possible in a very short span of time. And thank you so much. So viewers, today we have Dr. Khan, who is the founder and owner of KSG India. For years, sir has been committed to provide all the resources, guidance for the students to take their dreams, to make their dreams into reality. उन्होंने वो फेज देखा है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का हर फेज चेंज होता है हम सर से समझेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पैटर्न्स कैसे चेंज हो रहा है प्रीवियस में क्या था आगे कैसा है कोविड सिचुएशन में हम सिविल सर्विसेज की कैसे तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं I am also fortunate to have Ronak Agarwal ji with us on the show and the type of commitment he has today he has some very urgent commitment but he has given a word so he is here on time. All India 13th rank in a country of 130 crore population is a big thing. That shows that he has all the capabilities to run and to be in जो भी वो डिपार्टमेंट में रहेंगे he will make a difference and trust me civil services is one of the biggest service to this country and we need people like Ronak to lead this. I am also so much fortunate to introduce Ayushi Jain, all India 41 rank, and I am feeling so proud because she's also happens to be my student and a girl who has also helped us into training placement. A warm welcome, Ayushi. And Dr. Khan needs no introduction, no doubt. But sir, we welcome you on our show. And for this special show of Career Pathshala on careers in civil services. एंड आप जैसे लोगों के कारण ही लोग बिलीव करते हैं कि सिविल सर्विसेज क्रैक की जा सकती हैं एक वो हौसला आप लोगों का जो बढ़ाते हैं and your contribution in giving some of the finest people to civil services is undoubtedly indeed a great contribution, sir. Thank you, Richie, for joining in. So to open the context of this, I would like to invite Ronak for his opening remarks. So Ronak ji, first of all, thank you. It has been a rush for you, but for you joined Career Pathshala. आप की जर्नी के बारे में आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की जर्नी प्लीज अगर आप हमसे शेयर करें फॉर आवर व्यूअर्स दे आर ऑल एक्साइटेड दे आर राइटिंग मी टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट रौनक सर स्पीक सो ऑल इज योर सर प्लीज अपनी जर्नी बताइए आपने क्या प्रिपरेशन करी आपकी बैकग्राउंड व्हाई यू थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज and please guide our viewers on your journey and experiences, sir. Thank you so much for having me here, sir. It's a pleasure to be on this forum.
And so the name of the exam is UPSC, Union Public Service Commission, and we are called civil servants. So जैसा अनुज सर ने कहा कि the main thing is service to society, and my idea behind coming to UPSC was the same. Actually, I am from a business background, so मेरे grandfather ने मुझे इसके बारे में बताया था. When I was in class 12, he told that you can earn money, you can be successful in your life, but the amount of satisfaction which you will get from by being in a service like this, that is something which is unparalleled. You won't be getting in this in our stage. And that is when I had made my mind ki I'll be going for UPSC. But sir, as this is a difficult exam, we all know about this, I wanted to have a backup of my own. So I completed my chartered accountancy first. So I did my CA, my CFA, and then I plunged into UPSC. So that if in any case anything happens wherein after 28 years of age of mine, if I'm not able to get through, at least I'll have something and not go into depression. So that was my background. And so regarding the journey, this is my third attempt. In my previous two attempts, I could not clear the prelims. And this was my third prelims, but first mains and first interview. So I just want to make a very important fact into point that there are three different stages: prelims, mains, and interview. And all the three things test different personalities and aspects of a candidate. Therefore, it's not given that if you clear prelims, you can go for mains and interview. And if you don't clear prelims, then mains and interview are very far-fetched for you. So हर चीज एक अलग aspect को test करता है, and it's better not to be disheartened, because had I left the entire journey last year when I had not cleared prelims, then sir आज हम इस stage पे नहीं हो पाता. So the main thing is perseverance. And एक और चीज सर I would like to say is hard work के साथ साथ smart work भी बहुत ही important है. एंड ये कुछ नया बात नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत ही ऑनगोइंग टॉपिक है स्मार्ट वर्क, बट इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग करना होता है. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू इवैल्यूएट एवरीथिंग, इवैल्यूएट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड, इवैल्यूएट योरसेल्फ, बिकॉज सर हर जन किसी का स्ट्रेंथ हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स हो प्रीलिम्स, किसी का स्ट्रेंथ हो सकता है मेंस में कंटेंट, किसी का स्ट्रेंथ हो सकता है आंसर राइटिंग, किसी का स्ट्रेंथ हो सकता है पर्सनालिटी. So sir, everybody has his or her different strengths and weaknesses. So evaluate them, give mocks. Mocks से आपको क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, आपका क्या गलती है, उसको आप करेक्ट कीजिए. बहुत लोग सर मॉक्स खाली अपना मार्क्स या स्कोर दिखने के लिए देते हैं, बट यू शुड गिव मॉक्स टू इवैल्यूएट योरसेल्फ एंड वर्क अपॉन देम. That is the key to it. And so Khan Study Group mein I had gone for mock interviews, and that really helped me. It was rather my first mock there, and sir had guided me really well into the right path. And so yeah, here I am. Thank you so much for this. हम गुरु से भी जानना चाहेंगे रौनक के बारे में, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर खान सर, then we take the next question. So your opening remarks and your comments for Ronak, Dr. Khan sir. Ronak, as the name itself says, it's a shining star. So I'm basically hoping to live long enough to see how big he shines. He's definitely going to shine, and I'm sure about it. So Ronak करेंगे ये आगे चल के बहुत. And my opening remark is, of course, this examination is mostly drawn around general studies. And general studies is something which is not taught at any stage. Like he has done commerce, for example, and you have got technology, Ayushi, you have got, and then you have got a lot of people who study economics, politics, and history, and medicine, and whatnot. But the life is interesting. I mean, here you are being tested, not for something that you have acquired. You learn swimming all your life, but test competition is for cycling. So this one good part is that everybody is the same plane. In this examination, you've done whatever, it doesn't matter. You may have done it as a backup plan, as Ronak was just identifying, but it doesn't really mean that you're being credited for that. I mean, you given extra marks for that. So you are a simple graduate, a BTech or whatever you are, and then you can straightway take this examination. Everybody is equal. तो इस पर जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आप अपने करियर को सबसे हाई लेवल पे इंडिया में लिखना चाहते हैं, तो इससे बड़ा फेयर ग्राउंड आपको कहीं नहीं मिलेगा. चाहे आपका पीछे कैसा भी रहा हो, आपका उससे कुछ मतलब नहीं है. आपने मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी कर रखी हो, या लॉ कर रखा हो, या बीटेक कर रखा हो, कुछ मतलब नहीं है. अभी नई तैयार है, इसे टेबुला रासा, क्लीन स्लेट. आप आए, मेहनत करें और अपना करियर लिख सकते हैं. जनरल स्टडीज का एग्जाम है ये,
and that is where you are actually very important. Only one thing I would like to add to Ronak's statement is that हमें ध्यान रखना होगा कि हम अगर परीक्षा दे रहे हैं तो स्मार्ट वर्क में जो बताया उन्होंने कि बहुत जरूरी होता है, स्मार्ट वर्क में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन से हमारे बिहेवियर मिले हुए हो. मतलब if you need to pass the examination, your behavior should be like an examinee. You can't act like a student if you have to pass examination. You have to act like examinee. So the kind of mocks and the tests that he was talking about, you have to have. अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो परीक्षार्थी बनना पड़ेगा, विद्यार्थी नहीं बन सकते आप. अगर आप विद्यार्थी बने रहे हो सकता है प्रोफेसर बन जाए अच्छे, लेकिन मेरे ख्याल में आपको परीक्षा पास करने के लिए परीक्षार्थी बनना होगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस एंटायर जर्नी दैट वी हैव गॉट. ओवर टू यू डॉक्टर अनुज. Thank you so much, Dr. Khan, and that all comes from the experience. So बहुत सारे परीक्षार्थी को आपने विद्यार्थी से परीक्षार्थी बनाया, and the type of guidance which you are giving is definitely adding that small thing which everyone miss in their life. So Ronak, I know you are in short of time, but one question I really want to give, as you are from a CA background, and failures कई बार होते हैं. आपने बताया आपने 3 attempts में, this was your 3rd attempt. तो बहुत सारे लोग रिजल्ट्स को देख के खुशियां बहुत कम जगह होती हैं जो डिजर्व करते हैं. जैसा खान साहब ने बताया, फेयर ग्राउंड है परफॉर्मेंस का. तो कई बार इससे 2 साल पहले जब रिजल्ट आया होगा तो मायूसी लगी होगी. तो बहुत सारे लोग जो एस्पिरेंट्स होते हैं, दे फील सैड कि ओ आई गेव माई सेल्फ एंड आई कुड नॉट मेक इट. तो कैन यू, आई रिक्वेस्ट अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम योर साइड. उनके लिए क्या मैसेज दें? आपने पहले अटेम्प्ट में फेलियर हुआ, सेकंड में फेलियर हुआ. So what made you know I have to crack it? And the 3rd attempt was actually not your 3rd attempt, but it was a consecutive of the accumulance of knowledge and everything. your first second में गए, and जो last nail से आपने last hammer से nail को fix किया. So please failures जो जो इस बार नहीं निकाल पाए हैं उनके लिए please एक मैसेज दीजिए. सर इसमें एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट मुझे एक जन ने बताया था कि इस पूरे लिस्ट में, जैसे अभी 829 जन का लिस्ट आया है, इस पूरे लिस्ट में ओनली 2 people आर हैप्पी, द वन हु हैज कम फर्स्ट एंड द वन हु हैज कम 829th. बाकी सब कहीं ना कहीं डिसैटिस्फाइड है, सबको लगता है काश थोड़ा और बेटर हो जाता. एंड सर ये चीज हमेशा अवेलेबल होना चाहिए. अगर माइंड में थोड़ा सेटिस्फैक्शन नेसेसरी है, बट उसके साथ ही टू डू बेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और सर नाउ कमिंग टू द फेलियर्स, सब जैसा कि खान सर ने बोला कि whether you have a backup or not doesn't matter. रादर सर अगर आपके पास एक बेटर बैकअप है, आप एक थोड़ा बेटर परफॉर्म किए हुए हैं पहले, तो आपके पास उसका बैगेज भी ज्यादा रहता है. तो अगर फेल करने के बाद डिसअपॉइंटमेंट भी और ज्यादा होता है. एंड सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास बैकअप है तो आपको कम दिक्कत होगा और नहीं है तो मतलब आप ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड रिगार्डिंग हाउ आई डेल्ट विद फेलियर्स, ऐसे एक चीज खाली एक मैसेज देना चाहूंगा जो मैंने गलती की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में. आई वाज नाइव एंड आई थॉट दैट आई वुड ट्राई एंड डू इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट. एवरीबडी शुड ट्राई एंड डू इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट हैव इन माइंड कि दिस इज एन एग्जाम व्हिच माइट टेक मोर अटेम्प्ट्स. उससे क्या होगा, आप डिसहार्टेंड नहीं होंगे. इफ यू डू इट इन फर्स्ट इट्स एक्सीलेंट, बट इफ यू कांट इट्स नॉर्मल. And secondly, sir, you should have somebody to speak to. It can be your parents, your teachers, friends, anybody which you have. बट सर अगर आपका मेंटल एगनी आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और कोई सामने वाला आपको आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं कर रहा, तो सर ये एग्जाम कभी कभी डिसहार्टनिंग हो सकता है. इस एग्जाम का जहाँ एक पॉजिटिव ये है कि आपको नॉलेज वाइज से बहुत एनरिच कर देता है, वहीं कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम कहाँ मतलब अपने कंटेम्प्रेरी फ्रेंड्स के सामने हम कुछ नहीं कर रहा, दे आर अर्निंग एंड दे आर डूइंग दिस एंड आई एम सिटिंग बैक इन स्टडिंग. बट सर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स बोलते हैं. तो और सर जेन्युइनली मेरा जो 3 साल का जो पेन था ना, वो लास्ट का जो फर्स्ट 3 days का जो रिवॉर्ड मिला उससे पूरा बैलेंस आउट हो गया. सो या आई वुड लाइक टू से कि प्लीज डोंट बी डिसहार्टेंड. ये परसिवियरेंस का ही गेम है सर. अगर आप जितना लगे रहेंगे हो जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड इंटेंशन रखिए. गुड इंटेंशन के साथ लगे रहेंगे ना तो पक्का मिलेगा. So thank you so much, Ronak. This is something, perseverance is the key to success. It's been written in so many places and we believe in it. But people like you are the shining examples of perseverance. And जितना perceive करेंगे, the more you shine. And uh, the important message which Ronak has given to people who could not fail. And I really like the humor you bring in. The way you told कि पहला और 819 rank, whatever it is,
So only those are the two people who are happy. So I really congratulate you and your family, and it is a moment of great celebration. And वो celebration, वो success, वो believing in yourself is the key to take yourselves forward. And Ronak, if you have time, you please be in the show. We'll take more questions. And we have with us Ronak, All India rank 13, joining in for students who are youngsters from all different stream. हमारे पास कैरियर पाठशाला में 17,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, और इस शो को वो एक अलग अलग टाइम में कुछ लाइव या अलग देखते हैं, तो आज उनको बड़ा इंस्पिरेशन फील होगा when they see Ronak, Ayushi and Dr. Khan on the screen with Ruchi ma'am. So thank you Ronak, आपका ये जो थोड़ा सा समय है is going to inspire many people, and they will probably come one day and shake hands with you ki, sir, I want to say that I saw your interview on Career Pathshala and that was a turning point. So thank you for the inspiring and making us feel uh, proud of the efforts you bring in, the perseverance and the sincere attitude you had towards civil services. You could make it, and a sincere gratitude for joining in. And if time permits, Thank you you so can much, sir. be there, but I know you have an important commitment to make, and we will definitely excuse you. Dr. Thank you so Khan, your much. words before Thank you, Ronak sir. leaves, if he is leaving. No, sir. I'm staying. No problem, sir. Okay, thank I'll you so listen to much, sir. Ronak. So, coming back to Ayushi, Ayushi would like to know your journey, your how you graduated in 2014, and आज आप what was your initial part of journey, why you thought of going into civil services, or what is your experience sharing to students who aspire for civil services? सर इट हैज़ नेवर बीन माय चाइल्डहुड ड्रीम। सो मैंने 2 साल जॉब किया और जॉब में मैंने कई सारे सीएसआर एक्टिविटीज़ ये सब में बहुत एक्टिव थी क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन उस तरीके से उस फील्ड में था। तो उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते टाइम मुझे कई बार ऐसे फ़ील हुआ कि दिस इज़ समथिंग इन व्हिच आई फ़ील मच मोर सैटिस्फाइड इन। तो वो एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मौका दिया उसने। तो फिर वहाँ पे मैंने सोचा, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट किया दैट द जॉब इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर लाइफ, बट आई वांट टू डू समथिंग इन द सोशल फील्ड। तो फिर हम लोगों ने कई सारे ऑप्शंस कंसीडर किए एंड सिविल सर्विसेज फिर एक पूरे डेलिब्रेशन के बाद में निकल के आए कि दिस इज़ द फील्ड दैट आई वांट टू गो इन। तो मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि आपका जो करियर ऑप्शन है वो आप किसी भी स्टेज पे लाइफ के डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बचपन से ही सोचे कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है या आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए आपको बनना है। वो आपके मन में कभी भी आ सकता है और आप कभी भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार करने से या 2 बार करने से आपका हो जाएगा। हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जैसे कि मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था और सेकंड में मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो एक कंटिन्यूअस एफर्ट भी चाहता है, तो एक डिटर्मिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आप एक बार उस चीज़ को पहचान लेते हैं कि ये आपको करना है। तो एक हार्ड वर्क, जैसे कि रौनक ने भी बोला और सर ने भी बोला कि हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही, साथ-साथ एक स्ट्रैटेजी भी एक डेवलप हो जाती है कि किस तरीके से एफर्ट्स को आपको चैनलाइज़ करना है। और ये जो फेलियर्स है, डोंट सी देम एज़ फेलियर्स बट सी देम एज़ अपॉर्च्युनिटीज़ कि आप कहाँ पे लैग कर रहे थे और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो ये जो 2 अटेम्प्ट्स का मेरा पिछली बार का फेलियर था, ये इसने मुझे ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोशिश की कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ, कि मैं ये भी पढ़ लूँगी, वो भी पढ़ लूँगी, बट रिविज़न मैं कुछ कर नहीं पाई। तो उसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा खराब हुआ, बट आई न्यू दिस कि एग्ज़ाम आते-आते मुझे ये रियलाइज़ हो गया था। तो ज़्यादा दुःख इस बात का नहीं हुआ, बट सेकंड अटेम्प्ट में मैंने उसको थोड़ा और ठीक करने की कोशिश की। मेरा ऑप्शनल भी मैंने चेंज किया इस अटेम्प्ट में। तो एक मिक्स एंड मैच टाइप का आपकी चीज़ें चलती रहती हैं और आप लर्निंग लेते रहते हो और उसको इनकॉर्पोरेट करते रहते हो। बट जो एंड रिज़ल्ट आता है ये सब चीज़ें करने के बाद, वो शायद सक्सेस होता है, मुझे ऐसा लगता है। सो द एंड रिजल्ट जो आता है वो आपको इंस्पायर करता है, और बहुत सारे लोग आपके इस एंड रिजल्ट को देख के, आपके फेलियर से सक्सेस के रास्ते को देख के इंस्पायर होंगे। एक क्विक क्वेश्चन, आपके आसपास या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको हमेशा सपोर्ट किया हो, और या एक ऐसी कम्युनिटी जिसने सपोर्ट किया हो, इफ यू रिमेम्बर
one person except Dr. Khan. I know that Dr. Khan is a common answer, but somewhere in your life, if you want to just take this opportunity to just remember him or her, आयुषी, your कौन होंगे वो? सर इट वुड डेफिनेटली बी माय पेरेंट्स बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स ने इसको सिर्फ मेरे सपने की तरह नहीं ट्रीट किया। एक ये हम लोगों का एक कलेक्टिव सपना हो गया था कि हमको एक कलेक्टिव, मैं बोलूँगी कि 3 अटेम्प्ट्स जो थे वो सिर्फ मेरे अटेम्प्ट्स नहीं थे। मुझे लगता है कि वो सब एज़ अ फैमिली हम लोग दे रहे थे, क्योंकि द टाइप ऑफ मेंटल सपोर्ट दे वर गिविंग टू मी, सो इट वाज़ अनपैरेलल्ड। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे तीनों साल में सपोर्ट किया, मेंटल सपोर्ट और हर तरीके से, सर मैं तो उनको ही सबसे बड़ा थैंक यू बोलूँगी और उन्हीं का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बोलूँगी मेरे इस पूरे जर्नी में। Ronak, any person, state, anything which inspires you in life, और जिसको आपको हर कई समय आपको continuously persevere करने के लिए मोटिवेट किया? सर मुझे कभी ये फॉर्च्यून नहीं मिला कि मैं किसी पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट से कुछ सीखूं। कभी मेरा मतलब फिजिकली कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ किसी से भी, बट जैसा कि मैंने बताया, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया, एंड लाइक इवन आफ्टर कंप्लीटिंग माय सीए, आफ्टर नॉट जॉइनिंग द जॉब, लाइक मेरे मम्मी पापा और दादी, इन तीनों ने कभी भी ये नहीं बोला कि तुम क्यों पढ़ रहा है बेबी, लाइक यू हैव 2 years हो चुके हैं, जॉब एक बार ज्वाइन तो कर लो। दे नेवर टोल्ड मी एनीथिंग। बाकी बाकी पूरा मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड सबको ही थे बोलने के लिए कि मत करो, ये कर लो, वो कर लो, बट फैमिली हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड दे आर द रीजन दैट आई एम हियर टुडे। Great. So India is a blessed country to have always parents and family support, और उनके Yes, sir. आशीर्वाद और उनकी उनकी शायद ये जो आप लोग को सक्सेस मिली है, इसके पीछे उनका आशीर्वाद, उनकी सोच या उनका आप पे विश्वास शायद आपसे भी ज्यादा था। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हमारे माँ बाप हम पे बहुत भरोसा करते हैं। हम लाइफ में सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उनका भरोसा हम पे है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और वो सर एक भरोसा और आपको कहीं, यस प्लीज। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये इस एग्जाम में जितना मेहनत एस्पिरेंट्स को करना पड़ता है, उतना ही मेहनत अगर पेरेंट्स भी करे ना, वो एटलीस्ट वो विश्वास रखने में, डिस्कस करने में, हेल्प करने में, तो वो बहुत इजी हो जाता है उस एस्पिरेंट के लिए। सर बहुत लोगों के पास वो इमोशनल सपोर्ट नहीं हो पाता, बट अगर है तो प्लीज उसका अवेल कीजिए। बिल्कुल। सो ये सपोर्ट सिस्टम, एक मेंटर्स, आज रौनक एंड आयुषी आर द मेंटर्स फॉर द नेक्स्ट यूथ जनरेशन हु इज एस्पायरिंग टू बी इनटू सिविल सर्विसेज। और बिल्कुल उस विश्वास और अपने पेरेंट्स की उम्मीद के साथ आप इसको ट्राई करें। डोंट फील कि बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है। रौनक, आई थिंक आई हैव टेकन more than extra time with you. You have a very important appointment which is related to your career only. So please, I really look forward कि आप के साथ अलग से भी हम कभी कनेक्ट करें। और Surely, हम sir. on behalf of all the student fraternity, I really thank you for the coming, and Thank you, ये sir. जो थोड़ा सा समय आपने दिया है, ये एक लोगों को आप एक ट्रस्ट देके जा रहे हैं कि अपने पे विश्वास करें, एंड अपना ह्यूमर का सेंस कंटिन्यू रखिएगा। कहीं भी हम लोग मिलते हैं, कहीं भी बच्चे आपसे कभी टकराते हैं, तो थैंक्स सो मच रौनक। Thank you so एंड much, sir. Thank you. डेफिनेटली आपके ग्रैंडफादर वुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट person who would be so happy, your dadi and everyone, and they are always with you. Your grandfather is always with you, and everyone in your family is always with you in the smile you carry. Thank you, Ronak, and keep Thank you, shining. sir. Dr. And I'm Khan really sir, sorry to have to leave. I'm very sorry, but thank you so no much. problem. Dr. Khan sir के एक स्टेटमेंट के बाद आप लीव कर सकते हैं। Dr. Khan sir. No, I think I'm very touched. I have always been inspired by these young chaps, and Ronik in particular, the way he spoke, and then he is a live wire, and I think full voltage all the time. So stay the way you are, and my blessings are Thank you always so with much, you. sir. Thank God you bless so and much, take sir. good care Thank of you. yourself. We'll be meeting Surely, sir. sometime very Hopefully, soon. sir. Thank you, Thank sir. you very And much. all the best to the Thank you. aspirants. Thank you, Thank sir. you. So, viewers, Ronak has some very important commitment which was scheduled by civil services, but he made to be here. And now, Dr. Khan, we would like to know something from you on the changing patterns of civil services.
A lot of students want to aspire for civil services. एक थोड़े से मिथ होते हैं, कोविड सिचुएशन कैसे चेंज आ रही है, तो इस पे स्टेप बाय स्टेप हम बात करना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो सर हम आपकी जर्नी भी जानना चाहेंगे कि क्या इंस्पायर किया आपको कि सिविल सर्विसेज जैसी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को सपोर्ट सिस्टम दिया जाए, और उसके बाद हम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स पे बात करेंगे सर। योर जर्नी, because that will inspire a lot of young students who are aspiring to be a part of civil services. I've never spoken about my journey. I think that'll be probably first time I'll be talking about it. I come from a village, a remote village of Bihar, in Champaran district. That's where I was born, and then I studied in those backgrounds of rural areas. And I'm so fortunate to have grown up in rural areas. So went to Patna, which was for graduation, which is like Paris for me. I had never seen so much of lights in my life. And I was having my Hindi background because मैंने हिंदी से पढ़ाई की थी. Then I was recommended for एक एग्जाम होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसके लिए कमीशन हुआ था. सेकंड लेफ्टिनेंट होते थे उन दिनों. But I taught my university, so my family sent me to Delhi to study. And Delhi आके it was an English medium and I had no idea how to really go about in life. तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. तो then I struggled, and then I gave one attempt of UPSC and realized this is not my cup of tea, and that's on record. But then I always wanted to be a teacher. So that was a brief stint of exposure I had in Australia. In Macquarie University, I was there for some time. In Sydney, there I got the bug of teaching, and I wanted to be a teacher, and I am still struggling to be a teacher one day. So I did my master's in geography. My MPhil has been on developmental economics. Rural development is my JRF and SRF, and my PhD is on sustainable development. So I think I've lost my track and started my career teaching Constitution of India. So there's nothing connected at all anywhere. And that's how my journey goes. It's very, but then I have one good thing which I am really proud of, and I thank God every single day for that. KSG is a team of people which attracts good students. So अगर अच्छे स्टूडेंट को आप अट्रैक्ट कर लेते हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है. That's again a secret I'm sharing with you. We worked very hard on ourselves to attract good students, and then rest is history. We have been doing good results every year. बहुत फख्र भी होता है बोलने में कि क्लासरूम के स्टूडेंट्स, she was part of our interview course, but then क्लासरूम के स्टूडेंट्स ने कंट्री में पिछले 5 सालों में, इस साल का मार्क्स नहीं है, हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं. I mean, one of student of your own college, I think, Srishti, she was last year highest marks in general studies. She was in our Bhopal center only. वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी. इसके पहले टीना डाबी, उसके पहले रचित राज, ये सारे ऐसे लोग हैं जो कंट्री में हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं और क्लासरूम कोचिंग करते थे ये लोग at different centers of KSG. And we have a very dedicated team, and that's my biggest asset of life. Apart from the lovely students that I get to meet, the best mind that we get to meet, and I'm very curious and I'm very happy to talk to these people because I learn from them every time. Because my learning started decades ago. तो हर बार यूपीएससी का पैटर्न जैसा आपने बताया चेंज होता रहता है, और हर बार इन बच्चों से सुन करके जो ये सक्सेसफुल हुए, इनके जैसे अगर 41 रैंक कोई लाता है इतने बड़ी कंट्री में, तो मैं I've taught them and now I learn from them. अच्छा, इस बार क्या काम कर रहा है, what is working this year, so I reboot myself so that I stay in the frame. तो इन लोगों को बार बार मैं सुनता हूँ, सीखता हूँ, और इनको देख करके ये पता लगता है कि यूपीएससी जैसे जो डायनामिक इंस्टीट्यूशन है वो कैसे अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं. कोई इस साल ये जो चला तो अगले साल कुछ और चलेगा. तो I learn that also and keep on learning, and then I think I would never be a learned teacher. I will be a learning teacher all my life, and that's my motto. Very important statements are learned teacher और learning teacher. अगर आज के टीचर्स इस चीज को समझ लें कि वो learned टीचर्स की जगह एक learning टीचर्स बने रहें, तो समाज एक बहुत अच्छे हाथ में जाएगा. इंडिया की जो पॉपुलेशन है और जिस प्रकार का हमारा टैलेंट है,
एक टीचर्स की बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है कि उसको नर्चर करें। आपका ये स्टेटमेंट कि आपको अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो इस बात को परिभाषित करता है कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं, क्योंकि अच्छे टीचर्स को अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे तो सक्सेस कोई एक फैक्टर के कम होने से नहीं हो पाएगी। सो डॉक्टर खान, यू आर सो हम्बल, बट डेफिनेटली एक परिवार में जैसे पेरेंट्स उन पे विश्वास करते हैं, आप और आपकी पूरी टीम ने, जब मैं आपका नाम लेता हूं तो डॉक्टर खान रिप्रेजेंट एन इंस्टीट्यूशन, सो एंटायर योर टीम believes in the students. I have heard from Shrishti, she was our alumni, the type of confidence and trust you gave to students, उनकी जो छोटी सी कमियों को जो हम मिस करते हैं उनको निखारने का, so that gives us phenomenal support. So I just want to take one more question with you कि जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम का पैटर्न है, आपने डेफिनेटली कहा कि यूपीएससी ऐसा लगता है बहुत पुराना एग्जाम है, बट हर साल वो नया यूपीएससी का रूप लेता है, इट कीप्स चेंजिंग, क्योंकि जो बॉडी है वो ये चाहती है कि हर साल हम कुछ नया करें ताकि हम देश को अच्छे सिविल सर्विसेज के लोग दे सकें। तो सर, इस एग्ज़ाम पैटर्न का एक जनरल आइडिया देंगे उन व्यूअर्स के लिए जिनको यूपीएससी के बारे में ज़्यादा पता नहीं हो, फिर हम आयुषी के पास वापस जा रहे हैं इन डिटेल्स थोड़ा यूपीएससी की बात करने। तो सर, यूपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा है ट्रेडिशनली, और फ्यूचर में आप क्या देखते हैं सर? सर, इसका एग्जाम जो क्लासिकल है, काफी डिकेड्स आप कह सकते हैं कि 3 लेवल पे है। एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है फर्स्ट लेवल पर, जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 पेपर होता है, एक को पॉपुलरली लोग सीसेट कहते हैं जो क्वालिफाइंग होता है, और दूसरा जनरल स्टडीज होता है जिसमें जीके टाइप के क्वेश्चन होते हैं और मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होता है उसमें। और उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल इश्यूज और करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं वहाँ। उसके बाद जब हम निकल करके आते हैं तो आपको एक ऑप्शनल लेना होता है, कोई भी एक ऑप्शनल, जो लंबी लिस्ट है उसकी, उसमें से ले सकते हैं आप। कुछ इंजीनियरिंग के भी हैं, मेडिकल के भी हैं, लॉ के भी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे कुछ ऑप्शनल हैं। उनके 500 मार्क्स के होते हैं वो। 1000 मार्क्स का जनरल स्टडीज होता है। अब जनरल स्टडीज में आपका पॉलिटी भी हो गई, हिस्ट्री भी हो गई, ज्योग्राफी भी हो गई, एनवायरमेंट भी हो गया, डिजास्टर भी हो गया, एथिक्स भी हो गए, कल्चर भी हो गया, सोशल इश्यूज भी हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन होते हैं। ये रिटन एग्जामिनेशन होता है। और इसके बाद एक एस्से का पेपर होता है, वो 250 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर के 1750 मार्क्स का मेन एग्जामिनेशन होता है। और इसके बाद अगर मैं देखूं तो थर्ड लेवल आता है पर्सनालिटी टेस्ट का। पर्सनालिटी टेस्ट में 275 मार्क्स के होते हैं, और इसमें यूजुअली जनरल स्टडीज के आसपास ही घूमता रहता है, आपके डैफ को अगर छोड़ दिया जाए तो। और डैफ आप हमेशा अपने जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपने बारे में आप ज्यादा जानते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें हम इस 2025 मार्क्स के एग्जामिनेशन, पीटी में यू हैव जनरल स्टडीज, मेंस में यू आल्सो हैव गॉट जनरल स्टडीज। एसए का पेपर जो आप लिखते हैं उसमें मोस्टली यू राइट जनरल स्टडीज के करंट लिखते हैं, चाहे वो सोशल इशू हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे एथिकल हो, सब जनरल स्टडीज के आसपास ही आते हैं। तो देयर इज समबडी हु इज इवैल्यूएटिंग यू इवन इन इंटरव्यू, दैट पर्सन इज आल्सो टॉकिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ जनरल स्टडीज ओनली। सो अगर आपको अगर तैयारी करनी है इस एग्जामिनेशन में, और आपको एक्साइट करता है नॉलेज कि आप एनवायरमेंट पर भी पढ़ लें, आप टेक्नोलॉजी पर भी पढ़ लें, आप ज्योग्राफी पर भी पढ़ लें, एथिक्स पर भी पढ़ लें, सोशल इश्यूज पर भी, कॉन्स्टिट्यूशन पर भी, इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी, इफ यू एक्साइटेड अबाउट लर्निंग, आई डोंट थिंक एनी एग्जामिनेशन वुड एवर गिव एन ओकेजन टू लर्न सो मच इन सच ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जामिनेशन, जहां पे अगर आप क्लियर करते हैं तो डेफिनेटली यू गेट दोज 3 letters after your name, but you evolve as a person, as an individual. You evolve a lot. I'm sure she would agree with me. The day when she started her journey and the day when she is finishing her preparation and then getting her 3 letters to decorate after her name, IAS. So I think she is a different person in terms of knowledge. You talk to her environment, she has got some serious matter to contribute. Because if you talk on education, she has got serious matter to contribute. Philosophy, ethics, anything that she has got something to contribute. And that is why in this examination, they are searching for a person who can possibly manage the affair in a wide domain of things. You are not a teacher, but you ensure that the schools and colleges are running well in a district. You are not a doctor, but you ensure that, yes, hospitals are running well. You are not an engineer, but you ensure the roads are constructed correct. You are almost one person. Despite being expert of those areas, you have got something to say on everything. And that is why the nature of examination has evolved in a manner where you are actually tested for who you are,
and then how you want to contribute to this beautiful country, India. So this is what this current domain of examination is. One last thing which I like to add here. There's one thing which you have as an information. Of course, jankari hai. There's another thing is that how you express it. Even if the UPSC doesn't say that they are testing your skills of expression, but there is a huge reward which is attached to it. A skill of expression is very important. Like always take example of if you have written the wordings of the song, you don't become a singer. You just by writing the words of the song, you have to sing, and then for that, learning about that skill of expression is very vital. And quite often, a lot of students ignore this. वो सिर्फ ऐसा सोचते हैं अगर किचन में सब कुछ सामग्री है तो खाना तो बना ही लेंगे. मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता है. खाना बनाना एक कला है और सामग्री है. So just by having information you can't really do. At KSG we emphasize a lot on this aspect. This is an unwritten demand of UPSC. We make them write answers a lot. अगर सृष्टि की बात करें तो she was telling me once that she practiced so much that she nearly felt that this hand has fallen. She had practiced so much. So this is the extent of practice that you require for this examination. Skilling is very, very important component of this entire thing. Though it is nowhere written that you are tested for the skill. But if somebody has, because after PT, everybody is same. After the initial level of examination, everybody is same. And somebody who has got the skill of really going about it really definitely has an edge. So that's what I want to contribute. How about you, Dr. Anuj? Sure. Thank you, Dr. Khan. So, Ayushi, so much thoughts of wisdom and preparation Dr. Khan has given to viewers. मैं आपसे ये जानना and you being very fresh in UPSC, तो आप क्या change in patterns observe करें आपने पहले आपने preparation किया होगा, then you attempted. So, what is your say or comments in the changing patterns and किस तरीके से वो चेंज इन पैटर्न्स को स्टूडेंट्स पहले से जज करें, जैसे सर ने बताया कि स्किलिंग, राइटिंग करना. एनीथिंग यू वांट टू ऐड और गिव योर कमेंट्स इनटू इट? आई डेफिनेटली एग्री विद सर कि जो भी उन्होंने बताया कि स्किलिंग जैसे राइटिंग स्किल्स हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एथिक्स, ऐसे इसमें राइटिंग एक आर्ट की तरह आता है, तो वो एक थोड़ा सा समझना हम लोगों के लिए शुरुआत में ही ज़रूरी हो जाता है कि हमें एक थोड़ा ऑब्जर्वेंट बनना पड़ता है सोसाइटी की तरफ कि जो चीज़ें हम आसपास देखते हैं दैट ऑल्सो वी कैन इनकॉर्पोरेट इन आवर आंसर्स. फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कंपैशन का एग्जाम्पल देना है तो लॉकडाउन के समय पर जो गायों को लोगों ने चारा डाला, दैट ऑल्सो इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कंपैशन. तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी वी कैन इनकॉर्पोरेट इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत रॉकेट साइंस सोचना है, बट छोटी छोटी चीज़ों से जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है. तो आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते चाहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करते चाहिए, सिलेबस से उसको मैच करिए. तो अगर आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो आपके आंसर्स लोगों से हटके हो जाएंगे. आप एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट करिए. आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो मैं तो बोलूँगी न्यूज़पेपर मेरे लिए एक रिलीजन की तरह था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और हर स्टेज के लिए पढ़ती थी. जैसे कि पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए अलग न्यूज़पेपर के नोट्स बनाती थी, मेंस के लिए अलग बनाती थी, और मेरा ऐसे तो टोटली न्यूज़पेपर डिपेंडेंट था. और इंटरव्यू के लिए तो बोलना ही नहीं चाहिए कि न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है. तो एक हमको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और वही इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि मटेरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में कि हर कोई पढ़ सकता है. बट एक जो अलग करने की बात आ जाती है वो शायद मुझे लगता है इन्हीं सब चीज़ों से आएगी, और बाकी सब चीज़ें तो सर ने बता ही दी हैं कि क्या क्या हमें ज़रूरत है करने की पहले से. तो दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू ऐड फ्रॉम माय साइड. हमें बहुत क्वेश्चंस मिल रहे हैं और हम स्पेसिफिक हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है उस पर डिटेल नहीं जा सकते इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, बट दिस इज अ क्वेश्चन मे बी आयुषी यू कैन एड्रेस कि हाउ टू मेंटेन कंटिन्यूटी विद पेशेंस विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं. आप एक वेल सेटल्ड जॉब में हैं, सडनली आप छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपको प्रूव करना है अपने घर में, अपने समाज में, अपने फेसबुक फ्रेंड्स को ये आपका डिसीजन सही था. एक बहुत प्रेशर भी होता है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बीच में आते हैं कि कुछ एक जॉब लग गया या एट टाइम्स. सो हाउ टू कंटिन्यू, because sometimes we lost our track while preparing, attracted to upcoming opportunities like placement. तो ये क्वेश्चन मैं चाह रहा था आयुषी जी अगर आप इसको एड्रेस करें. सर बिल्कुल.
मुझे लगता है कि यूपीएससी से आने के पहले हमें एक जो कारण होता है यूपीएससी में आने का वो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जो बहुत डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन मांगता है। तो अगर वो कारण आपका क्लियर है तो डिस्ट्रैक्शन आएगा बट आप उसको ओवरकम कर जाएंगे। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो वो एक कारण आपका बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, और आपको हो सके तो डेली लिखिए उसको कि इस वजह से मैं यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करना चाहती हूँ। फॉर मी दैट वाज क्लियर, क्योंकि मेरे पास एक वेल सेटल्ड जॉब था जो कि मुझे अच्छा पे कर रहा था, सब कुछ था। बट मेरा ये था कि आई वांटेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन द बेस्ट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सो दैट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। तो इसने मुझे हमेशा ट्रैक पर रखा। बट एज ए ह्यूमन बीइंग यस, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो उसके लिए मैंने, जैसे कि मैंने फेसबुक अपना पूरा 4 साल के लिए, जो मेरा 3 अटेम्प्ट का प्रिपरेशन पीरियड था, उसके लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया था। और अभी 4 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आया है, दैट वाज द डे व्हेन आई एक्टिवेटेड इट अगेन। सो ये सब चीजें आप कर सकते हो कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शन को हटा के रखना है। और आप अपने फ्रेंड्स को ऐसे बता के रखिए कि आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे उनको। तो क्वांटिटी इज नॉट समथिंग दैट मैटर्स, क्वालिटी इज समथिंग दैट मैटर्स। अगर आप उनसे 1 महीने में भी बात करते हैं, 5 मिनट के लिए बात करते हैं, बट विद क्वालिटी, सो उनको भी अच्छा लगेगा और आप भी थोड़ा ऐसा होगा कि हाँ ठीक है, यू आर कनेक्टेड टू देम, आप ऐसे दूर नहीं छूट रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट ये है कि अगर आपका कारण क्लियर है और आप छोटी छोटी चीजें और भी कर रहे हैं टू कीप यू ऑन ट्रैक, तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो द बिल्कुल। वर्ड डिस्ट्रैक्ट itself tells that it is putting you away from your track. So please be focused on your track. And Dr. Khan, your advice for students, because this is a very common thing कि वो distract हो जाते हैं. Everyone starts with a big commitment and a big enthusiasm, and in between they, because of probably not performing or something coming in their life in between, they get distracted. तो कोई एक मैसेज बच्चों को इसके लिए सर? I think I entirely agree with Ayushi. I mean, this is a philosophy by Nietzsche. I mean, he is the one who said this, that if your why is very clear, the hows don't matter. अगर आपका why अगर clear है, तो मेरे ख्याल में कैसे करना है वो किधर से भी कर लेंगे, अगर आपका उसका पुल है, अट्रैक्शन है। नॉर्मली एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हमारा गोल क्लियर होता है कई बार, बट चूंकि दूर होती है और जब तक वो मिल नहीं जाता, वी आर नॉट kind of finding it clear in our vision. So what I basically suggest is make process goal. प्रोसेस गोल मतलब कि ये अगले 2 घंटे में मुझे ये करना है, 1.5 घंटे में ये करना है. लाइक you know the cursor that you have got in Google Map. It doesn't tell you that, I mean, you have certain destination. I want to drive from Delhi to Bhopal. It doesn't tell you Bhopal. It will tell आगे से लेफ्ट मुड़ जाइए, फिर राइट मुड़िए, फिर लेफ्ट मुड़िए, फिर राइट मुड़िए. सो वो छोटे छोटे जो डेस्टिनेशन है, इसको प्रोसेस गोल बोलता हूँ मैं. इफ यू हैव गॉट प्रोसेस गोल क्लियर, तो भी थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा. एक्मे गोल एंड देन तो एक गोल बनाते हैं. मैंने एक उस पर एक ब्लॉग भी बनाया था, अगर डॉक्टर खान ब्लॉग देखें तो आपको वो वहां का जो ये है ना, बिल्कुल जो आपने डोम रखा है अपना, ये आईएएस बनना है मुझे, ये आईएएस नहीं बनना है. आईएएस आपको दिखेगा ही नहीं, देश की सेवा करनी है, आपको आईएएस दिखेगा. आईएएस भी नहीं दिखेगा, आपको नीचे की छोटी छोटी चीजें दिखेंगी, ये ईंट लगानी है, ये ईंट लगानी है, ये ईंट लगानी है. तो हर 2 घंटे को आप निचोड़ करके अगर आगे बढ़ते हैं, आप हर 2 घंटे को अगर आप प्रोसेस गोल बना लेते हैं और उसमें एंजॉय करने लगते हैं, आई थिंक देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू स्टॉप यू. और निश्चय, आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर इफ योर व्हाई इज वेरी क्लियर, हाउस डोंट मैटर, हो जाता है फिर. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एंड डेफिनेटली वो उस क्षण के लिए जब आप अपना रोल नंबर एंटर करते, रिजल्ट आता है, वो एक क्षण होता है, बट वो क्षण को लाने के लिए बहुत सारे क्षण लगाने पड़ते हैं. और अगर टाइम इज द बिगेस्ट पावर, अगर आपने टाइम को शिद्दत से समय दिया है अपने काम के लिए, तो टाइम आपको रिवॉर्ड वापस देते ही देता है. थोड़ा सा समय आता है, सब्र रखना चाहिए, परसिवरेंस रखना चाहिए, and then you become a star, and you are always a star. Even if you fail or you cannot make it through, somewhere in your life the UPSC preparation is going to change your prospect of looking at things. And जैसे डॉक्टर खान सर ने बहुत अच्छा बताया कि हम गूगल नेविगेशन यूज करते हैं यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, तो वो
आपको आपके आसपास की चीजें बताता है. So such type of wisdoms is always available with people who are experienced, and as sir has said, he is a learning teacher, not a learned teacher. तो I think sir, you definitely in this COVID time बच्चों को प्रिपरेशन के लिए इस तरह का गाइडेंस चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए. तो बच्चे इस ऑनलाइन की प्रिपरेशन कैसे करें? सिविल सर्विसेज की अब प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे लोग, आप भी बिहार से दिल्ली आए, एक कॉमन सा होता है, कॉमन मिथ है. भोपाल में मैं किसी से भी बात करता हूँ, वो बोलता है दिल्ली जाके पढ़ना पड़ेगा. So not everyone, especially girls, find it difficult to all the way come to Delhi. And this COVID situation has given somewhere 1-2 साल लगेगा लोगों को कॉन्फिडेंट होने में कि फिर से हम कहीं जाके कर सकते हैं. तो कैसे ऑनलाइन प्रिपरेशन हो और आपके जो वेरियस सेंटर्स है वहां से बच्चे लाभ उठा सकें, प्लीज उसका थोड़ा बच्चों को आप गाइडेंस दीजिए. Right, so this is a very pertinent question जो अभी के संदर्भ में बहुत important हो जाता है. What I feel is that कि online का जो एक image है, that is somebody would come on a screen and then give you some lecture and then evaporate in thin electrons. So वो उससे कुछ बात बनती नहीं है, because you cannot ask and you cannot really. It is happening at a time when we are having 4G. अब कनेक्टिविटी हमारी देखो एक बार भी इंटरप्ट नहीं हुई है. I mean, we are all very much seamlessly connected with each other. We are watching, and a lot of audience is watching us. So it is like a thing which is very deep. But इसको सोच करके ना KSG ने एक KSG ऑनलाइन बनाया, because in our profession hands-on monitoring is very important. Hands-on guiding is very important, because दो बच्चों को 10 में से अगर 4 मार्क्स आए हैं, दोनों को 6 चाहिए. For 2 marks, I can't give the same advice to both of them. Each one need to be given exclusive tailor-made advice. तो हमने क्या किया, इसमें एक KSG ऑनलाइन का, जिसका डिटेल उनको KSG वेबसाइट पे मिल जाएगा, KSG ऑनलाइन, we call it popularly KOL, एक सिस्टम बनाया एंड एक बहुत बड़ी संख्या के लोग की एक टीम बनाई. एंड दोस टीम is a डेडिकेटेड मेंटरशिप उन बच्चों को दे रहे हैं, ताकि उनको वो चीजें मिल सके जिसकी वजह से वो एक्चुअल डिफरेंशिएटर होता है उनमें. एवरी इंडिविजुअल इज बीइंग मॉनिटर्ड एंड मेंटर्ड, सो दैट उनको, चाहे वो भोपाल में बैठे हैं, विदिशा में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, दे गेट द सेम टीचर फ्रॉम दिल्ली. जो पहले भोपाल में आकर उनको मिलता था, उनको दिल्ली से मिल सकता है. हाँ, भोपाल में जब सेंटर खुल जाएगा, गवर्नमेंट अलाउ करेंगे, तो विल इनवाइट देम देयर. बट अभी क्या है कि वो दे कैन ज्वाइन एंड गेट द सेम मेंटरिंग एंड सेम राइटिंग स्किल डेवलपमेंट, जिसके लिए हम कंट्री में जाने जाते हैं, उनकी मेंटरशिप हो जाएगी. दे आर एवरी डे बीइंग टेस्टेड, और उनकी टेस्टिंग एवरी डे होती है. तो इट इज मोर लाइक ए ट्यूशन, बट देन somehow this makes a difference. That really makes a difference, especially for the students who deserve some right kind of intervention at the right point in time. तो हमने जो मेथड बनाया है इसमें ऑनलाइन का, उसमें एक्चुअली वी हैव गॉट द फ्लेवर ऑफ ऑफलाइन इंडिविजुअल मेंटरशिप की, उसको डाल रखा है, एंड दैट इज रियली वर्किंग आउट, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ बैच रिसेंटली. ओवर टू यू सर. थैंक यू सो मच. आयुषी जी, आपका कुछ इनपुट फॉर ऑनलाइन लर्निंग और बच्चों को इसको कैसे शेड्यूल बनाना चाहिए? इंटरनेट इज ऑल्सो एन इश्यू. जैसे कई बार क्या होता है कि सर चंपारण से आए हैं, आई डोंट नो कितना अच्छा वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी होगा अभी. तो डेफिनेटली थैंक्स टू द टेलीकॉम रिवोल्यूशन एंड बिग इंडस्ट्रीज हु हैव ब्रॉट इंक्लूडिंग BSNL एंड प्राइवेट प्लेयर्स, जिन्होंने हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड किया है. बट ये ऑनलाइन लर्निंग में बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देंगे कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और किन चीजों पे अपन को ध्यान रखना है कि हम ऑनलाइन है तो हम डिस्ट्रैक्ट भी ना हो? आयुषी, योर कमेंट्स. सर डेफिनेटली अभी जैसे कोविड का टाइम है, तो इन दिस रिस्पेक्ट ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम रियली वेरी इंपॉर्टेंट, and not just for civil services preparation, but the entire education system is now changing according to it. एंड सिविल सर्विसेज के लिए डेफिनेटली अब जैसे हम काफ़ी बड़े हो जाते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के, तो काफ़ी समझ आ जाती है हमें, बट स्टिल कई बार चांसेस होते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के. तो मेरे लिए मैं ऐसे करती थी, कई बार हम कुछ चीज़ ऑनलाइन खोजने निकलते हैं तो एक थ्रेड से दूसरा थ्रेड, ऐसे थाउजेंड्स थ्रेड खुल जाते हैं, तो वी एंड अप वेस्टिंग सो मच टाइम डूइंग दैट. तो उसके लिए मैं ऐसे करती थी कि मैं एक डायरी में टॉपिक्स लिख लेती थी कि जो मुझे बाद में सर्च करने हैं, तो वो एक घंटा मैं डेडिकेट करती थी उस ऑनलाइन सर्च के लिए.
तो उसमें क्या होता था कि मेरे पास वो डेडिकेटेड विंडो होती थी सर्च करने के लिए, और मैं उसको कभी आगे भी नहीं बढ़ाती थी, ताकि कि वो एक 1 घंटा है तो मैं नेक्स्ट डे के 1 घंटे में इस चीज को कंटिन्यू करूंगी। अदरवाइज क्या होता है कि हम बहुत ही अननेसेसरली चीजें नोट डाउन करने लगते हैं और फिर मगअप करने की कोशिश करते हैं उसमें। तो कई बार ये जो पूरी एक्सरसाइज होती है वो फ्रूटफुल नहीं रहती है। तो एक अगर आप एक विंडो बना लें, एक टाइम को लिमिट कर लें उस चीज को करने के लिए, so that is something, it would be my suggestion to people who will be doing online education from now on, who are doing right now. डेफिनेटली। सो आयुषी हैज वेरी राइटली सेड। एक क्वेश्चंस, काफी व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, विच आई फील कि दिस इज इम्पोर्टेंट वन एंड रिपीटेटिवली, कि वो टाइमलाइन और प्रिपरेशन पे सब लोग पूछ रहे हैं। पहले मैं आयुषी आपसे जानना चाहूंगा, फिर हम डॉक्टर खान से पूछेंगे कि कैसी टाइमलाइन बनानी चाहिए, कि हमको पहले क्या प्रिपरेशन की एंड आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए, बेसिकली ऑन द टाइमलाइन, कि हमको प्रिपरेशन अगर 1 साल या 1.5 साल को हम टारगेट करें तो कैसे उसको, जैसे सर ने बताया कि उसको हर 2 घंटे की प्रिपरेशन, बट हम उसको अगर मेजर यार्ड्स में डेवलप करें कि आप फर्स्ट स्टेज आप ये पढ़िए, फिर वो करिए, फिर सब्जेक्ट्स पे जाइए, तो डेफिनेटली टाइम टेबल का और टाइम मैनेजमेंट का ये पूरा खेल है। तो आयुषी, कैसा आपने फॉलो किया, और या आप अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को गाइड करें कि टाइम मैनेजमेंट कैसे फॉलो करें, so that they can have time for every aspect of UPSC? So for me, actually मेरा हॉबी भी डायरी राइटिंग था। तो और मैं डायरी राइटिंग वैसे टाइम टेबल के लिए भी करती थी। तो मेरा ऐसा था कि मैं 1 मंथ का जैसे टारगेट बना लिया, और एक ओवरऑल टारगेट रहता था मेरा। तो एक फिर वो 1 मंथ का टारगेट डिवाइड होके 1 वीक का होता था, फिर 1 डे का होता था। तो फिर उसमें क्या होता था कि मेरे जो गोल होते थे, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा अपना डिवाइड करती थी, और उसमें बफर डेज भी डालती थी कि अगर ये चीज नहीं हो पाई इस वीक में, तो एक पर्टिकुलर डे में मैं आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट थिंग्स विच वर रिमेनिंग फ्रॉम माई पास्ट वीक। तो उस तरीके से करके आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं। और आंसर राइटिंग स्किल्स मैं कहूंगी कि अगर आप 1 साल में इस एग्जाम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। और कई बार हमारे पास वो जो फाउंडेशन स्टेज में जब चल रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि किस अप्रोच के साथ हमें चीजों को पढ़ना है। तो कई बार हम बहुत अननेसेसरली डेटा और ये सब चीजें मगअप करने लग जाते हैं, और किसी की आंसर कॉपी देखी तो अच्छा इसने ऐसे लिखा है तो आई एम गोइंग टू इमिटेट दैट। So, Dr. Khan, I know you are a teacher and teachers की classes होती हैं. So, you 130 is your commitment to your students. So, your say on this, and probably I think we have some issues with Ayushi's net. We'll just check. And in the meantime, sir, आपके final message before you leave for the session, and your tips to the students for aspiring, एंड ऑल्सो KSG किस तरीके से सपोर्ट देगा ऑनलाइन इन बच्चों को, वो प्लीज आप गाइड करिए विथ योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। Dr. Anuj, what I am trying to really is observe here is that what Ayushi has been saying, I'm just giving a word to it. The technique that she was using, I call it time boxing. हर चीज के लिए आप टाइम लगा दीजिए उसको, मतलब एक्सपायरी टाइम होनी चाहिए उसकी, वरना क्या होगा कि वी प्लान वेरी वेरी kind of meticulously and then execute very liberally. तो खेल सारा एग्जीक्यूशन का है। तो अगर आप एग्जीक्यूट सही करते हैं, आपने बताया कि घंटा लगा दिया कि 1 घंटा हमने करना है इसको, सर्च करना है, तो 1 घंटे में सर्च किया, जो हुआ हुआ, नहीं हुआ फिर आगे चले गए। तो हर चीज के लिए टाइम अलोकेटेड होगा। केएसजी में जो हमने बैचेस शुरू किए हैं ऑनलाइन, उसमें हमने एक ऐसी ऑप्शंस दे रखी है कि उसमें उनको जो मेंटरिंग की सपोर्ट है वो भी मिलती है while they are doing their आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज या जो भी चीजें कर रहे हैं, वो साथ के साथ उनको लाइव क्लासेस मिलती हैं, बेस्ट ऑफ द कंट्री मटेरियल उनको फिजिकली मिलता है। एंड द स्पेशल थिंग व्हिच वी हैव डन इज दैट कि अगर आगे खुल जाती है सिचुएशन, व्हिच विल डेफिनेटली जस्ट अ मैटर ऑफ वीक्स, जब वो खुल जाती है तो दे कैन ट्रांसफर देम इनटू द फिजिकल क्लासेस आल्सो। तो उनको वो भी ऑप्शन दे करके रखा हुआ है। एंड देन इफ द स्टूडेंट्स वांट दैट दे कैन स्टार्ट द थिंग एज इन फिजिकल मोड। अदरवाइज अभी की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसमें वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि ऑल दैट व्हाट वी डू इन द सेंटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन।
platform, and that is what is making it very special, with some added advantage कि उनको replay करके भी देख सकते हैं आप. Classes रहती हैं 24 घंटे तक, classes replay कर सकते हैं, जो कि शायद आपके फिजिकल क्लास में वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है. एंड मेंटरशिप का हमने इंतजाम किया हुआ है. एंड द इफ यू आस्क मी फॉर द kind of my concluding line on that, I think इसमें सबसे बड़ी बात है कि I think अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं, you are expecting the nation to hire you, I think you should stop expecting from others to support you. जिस दिन आपका एक्सपेक्टेशन कम हो जाता है, अपने अलावा किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, you start delivering, and that is what I basically want to give. Expect from only one person, and that is you yourself. किसी और से एक्सपेक्ट मत करो, otherwise अगर एक्सपेक्टेशन करेंगे तो यू गेट अ वेरी स्वीट एक्सक्यूज ऑफ फेलियर. अच्छा, उन्होंने ठीक नहीं किया, उनकी वजह से मैं फेल कर गई, उसकी वजह से फेल कर गई. that's not possible. Take your own charge, own your failure, own your success, and then in short be your own cheerleader. Don't expect the nation to be your cheerleader. अभी आयुषी के लाइफ में बहुत सारे cheerleaders होंगे, but if she was waiting for the cheerleaders before those 3 letters appearing before her name, I think she would have never got here. She was her own cheerleader. अपना cheerleader खुद बनना पड़ता है लाइफ के कुछ स्टेज पे, क्योंकि जब आप सृजन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, किसी को नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है. You alone work so hard, and I think if you trust yourself, trust your abilities, I'm sure the God is going to reward you and be kind of you. That's all I would like to say, sir. How about you, sir? Sir, thank you so much. The humbleness and the true spirit of a teacher, आपसे better कोई resemble नहीं करता है. It was really an honor to share screen with you. And बहुत सारे students को जिनको help चाहिए, they can reach out to the centers. It's not that only the online materials, blogs, and his open sharing of his best of the practices, you can take the advantage. Civil services is one of the most important contribution you can make to the country, and with a very exciting opportunity you can make as a career. It is not for very high class, moderate, or don't judge yourself. जैसा सर ने कहा, एक फेयर प्ले है, फेयर ग्राउंड है, आप परफॉर्म करिए and you will be there. So Dr. Khan, it was really a pleasure to have you. My pleasure, and we are feeling so grateful to Ruchi for bringing you here. And हम चाहेंगे आपको और फिर से बुलाएं, larger audience को इस तरह से आप एड्रेस करें, and keep bringing smiles to so many families, and keeping them motivated. And be safe, sir, and thank you for being a part of Career Pathshala on behalf of CII, Young Indians, all our chapters, and the student fraternity. I really thank you for being here, sir. Thank you very much, sir. Thank you for having me here, sir. Thank you. Thank you, sir. आपकी क्लास का समय हो गया है. I think we have on you on time. Now we go on to Ayushi. Thank you, Dr. Khan, for being here. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Ayushi. Thank you, sir. So Ayushi, there are so many important questions, and I like to take मैं कुछ questions जरूर लेना चाहूँगा in the interest. From the I am sorry, I cannot take very specific questions, but एक प्लेसमेंट के संबंध में क्वेश्चन है, बच्चे पूछ रहे हैं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है एज अ स्टूडेंट हम डायरेक्टली जाएं, या जैसे आपने अपने कॉलेज में प्लेसमेंट लिया, प्लेसमेंट के बाद आप इस ऑप्शन में आए, तो क्या बहुत बड़ा आपको इश्यूज हुए, या इट वाज ऑल ओके कि आप आफ्टर जॉब भी इसको एस्पायर कर सकते हैं? सो अमन वांट्स टू आस्क दिस. मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल बताऊं तो मैंने 2 साल जॉब किया, उसके बाद मैं इस फील्ड में आई, और उसके बाद भी 3 साल बाद मेरे को जॉब मिला है. तो मैं तो यही कहूँ कि आप किसी भी, जैसा मैंने पहले भी बोला था, कि आप किसी भी स्टेज पर रियलाइज कर सकते हैं कि आपको करियर में आगे क्या करना है, बट उसके लिए बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए अबाउट योर नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, कि अगर आपको प्लेसमेंट लेने से पहले ही पता है कि आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो डेफिनेटली आप इसी स्टेज पर जा सकते हैं, क्योंकि आप उस डिटर्मिनेशन के साथ वो एफर्ट्स पुट कर पाएंगे जो कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम चाहता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. एक कंसिस्टेंसी चाहिए होता है, एक परसिस्टेंस चाहिए होता है.
तो वो एक डिटर्मिनेशन से ही आता है। और आपका अगर थॉट प्रोसेस क्लियर है कि आपको क्यों सिविल सर्विसेज में जाना है, देन आई वुड से कि डेफिनेटली आपको उसी स्टेज पर जाना चाहिए। बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि सेकंड थॉट आता है कि आपको थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है या सेल्फ डिस्कवरी की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप बेटर एक्सपीरियंस के लिए पहले प्लेसमेंट ले सकते हैं। और प्लेसमेंट के टाइम भी आप एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला फेज में जा सकते हैं कि आपको क्या यही अच्छा लग रहा है, दैट यू वांट टू डू दिस फॉर लाइफ, और डू यू वांट टू डू समथिंग एल्स। तो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस भी आपके लाइफ में होते रहते हैं जो कि आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैं जब मूवीज देखती थी, तो जो एक कुछ मूवीज में ऐसा रहता था कि व्हेन समवन गिव So I think we lost Ayushi, but there's some network glitch. She will be definitely joining us back. So we will be taking your questions, viewers, and we'll wait for just a minute, and Ayushi will be probably back. Yes, she's back, and so network सॉरी, आई issues. थिंक देयर इज Problem. Yes, आई Ayushi. थिंक देयर इज सम आप इशू विद द मूवीज की बात कर इंटरनेट। रही थी कि when you were watching movies. यस, सो आपको मतलब छोटे छोटे एक्सपीरियंस के थ्रू लगेगा कि व्हाट यू रियली वांट टू डू। फॉर मी दैट वाज वन थिंग, मतलब ये सब चीजें थी जो मैंने बटोरी, और फिर पता चला कि नहीं, मेरे को ऐसे ये कॉर्पोरेट फील्ड में नहीं काम करना है और सिविल सर्विसेज में जाना है। तो अगर आपको वो रियलाइजेशन अभी है तो आप अभी जा सकते हैं, नहीं तो बाद में भी जा सकते हैं। एज लिमिट 32 ईयर्स है, तो आपको रियलाइजेशन जब होता है तभी करिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट। ऐसा मत सोचिए कि प्लेसमेंट आपको हेल्प नहीं करेगा। एक प्लेसमेंट आपको एक नया प्रोफेशनलिज्म देगा, एक्सपीरियंस देगा, लोगों से डील करने का। आयुषी ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, सेल्फ डिस्कवरी का। अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे, आप उस मेंस के इंटरव्यूज को फेस करना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज कुछ भी पूछ सकते हैं। आपने 1000 चीज पढ़ के गए, बट वो हो सकता है वो 1001वीं चीज पूछ लें। तो आपको बड़ा कॉन्शियस रहना है। सो आयुषी जी, एक क्वेश्चन भी था कि हाउ आपने एनजाइटी को कैसे डील किया इंटरव्यू के एक दिन पहले की, वो क्षण, इंटरव्यू में आप जा रहे हैं उसके पहले की वो एनजाइटी। और आई थिंक फर्स्ट टाइम यू अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड इट वाज नथिंग लाइक एन एक्सपीरियंस फॉर यू। So how did you handle it? As per my knowledge and experience, you मैं were taking interviews in college, helping your juniors, and Ayushi was the first to get placements in college. तो वो इंटरव्यू तो डेफिनेटली बहुत छोटा इंटरव्यू होता है, बट एक यूपीएससी के इंटरव्यू की एंजाइटी को आपने कैसे हैंडल किया? मैं सिर्फ यूपीएससी के इंटरव्यू की एंजाइटी नहीं, मैं बोलूँगी कि एंजाइटी पूरे सिविल सर्विसेज के किसी भी फेज में हो सकती है। और उसका पीक मैंने देखा था मेरा सेकंड अटेम्प्ट में, जब मैं मेंस दे रही थी। तो उस टाइम में मेरी एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा शूट अप कर गया था। तो आफ्टर दैट आई फॉलोड सम थिंग्स, लाइक आई स्टार्टेड रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग, आई स्टार्टेड मेडिटेशन, एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग माय फीलिंग्स विद अदर स्टूडेंट्स। So viewers, it is raining heavily, and Ayushi is from a remote location. There are some hiccups in internet. Please bear with us. Uh, she's here to share all possible success mantra, and just hang on, and we'll take this session, and uh, just be there, and we'll resume the internet connectivity very soon. Um, Yes, she's back. I am so sorry, sir. I do not know what is I happening with know my you are. internet connection. आयुषी is from a remote location. रेंज भी हो रहे हैं अभी, और हम लोग 1 डेढ़ घंटे से Yes, लाइव हैं, sir. तो थोड़ा बैंडविड्थ भी इश्यूज आते हैं। तो एंजाइटी को आपने सेकेंड अटेम्प्ट में जब आप दे रहे थे आपको हुआ, देन थर्ड अटेम्प्ट यू स्टार्टेड मेडिटेशन एंड अदर थिंग्स। तो आप उसके बारे में और कुछ बताएंगे प्लीज? Uh, yes, sir. Meditation is something that helped me a lot. एंड एक वो एफर्मेशंस वाला होता है कि यू क्लियर योर थॉट, और आप एक जो एंजाइटी का रीजन क्या होता है कि आपको लगता है यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल,
और क्या होगा अगर आप इस चीज को या एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो अगर आपका किसी भी तरीके से इस चीज से दिमाग हट जाए और आप इसी पर्टिकुलर एनर्जी को आप चैनलाइज कर पाए इन द फॉर्म ऑफ योर एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन द एग्जाम, तो वो मुझे लगता है कि वो मुझे मेडिटेशन ने दिया है, वो मुझे रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग ने दिया है। तो ये इस तरीके का आप कुछ भी तरीका निकाल सकते हैं अपने आप को, मतलब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का या अपने इमोशंस को समझने का, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं इतना भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो हम लोग ज्यादा ये इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। तो मुझे लगता है वही एक एंग्जाइटी का सबसे बड़ा रीजन होता है। तो आप अपने, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस, अपने फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए, अगर ऐसा भी नहीं है तो मेडिटेशन कीजिए, डायरी में लिखिए अबाउट योर इमोशंस और वो सब। और ये बात भी जान लीजिए कि दिस एग्जाम टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो कई सारे लोग होते हैं जो 6th अटेम्प्ट में जाके क्लियर करते हैं। तो बस ये है कि आपको कंटिन्यूस एफर्ट देते रहना है। और जैसे कि रौनक ने भी स्टार्टिंग में बोला था कि 3 साल उसको लगे, बट जो रिजल्ट आने के 3 दिन बाद की खुशी थी, तो उसे लगा कि वो सब चीजें कॉम्पेंसेट हो गई उसके लिए। तो आप अपने गोल को ध्यान में रखिए। और मुझे लगता है कि अगर आप मतलब ऑनेस्टली अगर एफर्ट्स पुट करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है जुडिशियस अगर आप टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे। और सक्सेस सिर्फ यही नहीं होगी कि आपका लिस्ट में नाम आ गया, सक्सेस ये होगी कि आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। जैसे अनुज सर ने भी और खान सर ने भी बोला था कि एक जो यूपीएससी के प्रिपरेशन से पहले एक इंसान होता है और एक बाद में एक इंसान होता है जो प्रिपरेशन के कुछ टाइम के बाद होता है। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो सिर्फ लिस्ट में आना ही सबसे अचीवमेंट नहीं होता है यूपीएससी के प्रिपरेशन का। एक ओवरऑल होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन पीरियड। डेफिनेटली आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम की जो कठिनता है वो आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर देश का सेवक बनाती है, जो फिर आपको, और ये यही पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है। जब आयुषी अब ट्रेनिंग करेंगी, फील्ड पे जाएंगी, तो एवरी डे देयर इज अ न्यू थिंग, देयर विल बी डीमोनेटाइजेशन हैपनिंग, देयर विल बी एनी क्राइसिस, देयर विल बी न्यू रिफॉर्म्स, and every day that the change personality is going to support you। तो जब आप इसमें जाएं तो पूरी शिद्दत से जाएं एंड डेफिनेटली उस विश्वास के साथ जाएं। अगर आपको लगता है कि समथिंग यू नीड अ मोटिवेशन, so please take the picture of Ayushi and put it on your wall, and just inspire to to walk her journey and to be there। And definitely now she's on Facebook, so the moment you get successful, tag her and say, ma'am, I am also now a part of UPSC board and I've cleared that UPSC exam and मैं आपके एक जूनियर हूँ या जूनियर हूँ, whatever। So आपके आसपास के लोग बहुत इंस्पायर करते हैं। आयुषी, I really thank you from bottom of my heart and for coming, for being so humble, and I cannot just imagine that this is the same। You have not changed, at least in terms of your reaching out to people, the सोसाइटी के लिए कुछ करना, स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने की आपकी जो इच्छा शक्ति एज अ स्टूडेंट मैंने आपको ऑब्जर्व किया था, वो आज भी है। एंड आप जैसे लोग सिविल सर्विस में टॉप पोजीशंस पे जाएं, हमारी ये उम्मीद है, शुभकामनाएं हैं। एंड वी रियली थैंक यू फॉर कमिंग टू कैरियर पाठशाला। योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड फाइनली बिफोर वी से गुड बाय, आपके कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स आयुषी फॉर द स्टूडेंट्स। मैं अनुज सर के बारे में ही बोलूंगी क्योंकि मैं अनुज सर को काफी पहले से जानती हूँ और कॉलेज में हम लोगों ने टीएनपी या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में सर के अंडर में मुझे काम करने का मौका मिला। सो आई हैव लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग दैट पीरियड। और सर ने एक्चुअली मेरे को सर्विस की, सिविल सर्विस टुवर्ड्स अदर्स, सो दैट वाज अ लेसन दैट आई हैड लर्नड फ्रॉम हिम ड्यूरिंग दैट पीरियड। So sir, thank you, thanks a lot. And that was also one of the brick that had made this entire thing, or that has made the entire house or thing that I am right now. So sir, your contribution is also there in me realizing what the goal of mine is. Definitely, it's your humbleness, Ayushi, but all credit goes to you, your preparation। We are all just stones guiding ways, but आपकी जो जर्नी है वो अपने आप में एक लाइफ एक्सपीरियंस है। आप बहुत लोग को इंस्पायर करें अपने आसपास, दुनिया में किसी भी कोने में बैठे लोग जो इस शो को देख रहे हैं, आज आयुषी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं।
And I really thank Ayushi for coming in such a short notice. And definitely, you are going to be a rock star of MP, and the Madhya Pradesh especially feels proud. Ellen City, definitely you will be always remembered in golden lines with Ellen City for not only being successful but the dedication and giving back to society जो आपका एक मोटिव है वो बहुत अच्छा है. And best wishes and lot of congratulations to your family and everyone. कोशिश करेंगे आपके मिठाई खाने जरूर आएंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल. Thank you so much. Thank you for So giving me thank this you viewers opportunity. for watching Ayushi and Ronak with Dr. Khan, Ruchi. We all had a very great time, and thank you for watching Career Pathshala. A big thanks to Ayushi, and you made us all proud, especially women leaders like you. India needs you, and we definitely look India to be in safe hands with leaders like you leading the country and serving the country with all your commitments. Thank you so much, Ayushi. Thank It was a privilege, pleasure, and a gratitude to you for giving times to Career Pathshala. So, you. The pleasure thank was you, all viewers. mine. Yes. Thank you, viewers, for watching. We sign off for today, 20th day of Career Pathshala. We meet you soon. Thank you, Ayushi.